गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका जिशान बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं बात। हाँ, थोड़ा नाम सुन के अजीब सा लगता है, बात क्या है। सो बेसिकली रोमन सोलह ने इस बात को बनाया था इट सिम्स। तो यस, आगे चलते हुए मैं आपको बताऊंगा बात की स्पेशलिटी क्या है। और हमें आज लंदन से बाहर जाना पड़ेगा बात के लिए, विच इज़ ऑलमोस्ट like 1.5 to 2 hours. So see you soon there. Till that, stay tuned. So now we reached Paddington. तो हमें यहाँ से बात जाना पड़ेगा। And guys, we are 30 minutes late. तो शायद हमें 9 बजे की ट्रेन नहीं मिलने वाली है। So let's try to take a 9:30 train from here now. Yes, luckily, hopefully we have a 9:30 train. Let's see our train. Oh, finally, bullet train. Guys, this is a train which we're gonna travel now. And this is our first experience in a bullet train. Wow, ये देखो guys, ये बंदा साइकिल लेके ट्रैवल कर रहा है ट्रेन में। And this is our train. Since we are 30 minutes late, तो हमें नेक्स्ट ट्रेन लेना पड़ा। And you know, ऑलराइट, अब हम आ चुके हैं बात, और इस स्टेशन का नाम है बाथ स्पा। चलो आगे चल के जानते हैं बाथ स्पा क्यों है। वाओ, लुक एट द सिटी गाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल, यू नो। इनका आर्किटेक्चर इज जस्ट लाइक इट्स स्पीचलेस बेसिकली। ओके, वी हैव टू क्रॉस द रोड एंड हेलो गाइस, just now we got to reach Bath. So from here we are heading to Bath Spa, which is a Roman bath special spa over here, which used to be a Roman spa over here. So yes, this is my outlook for today. So yes, stay tuned, see you soon there. We're not the only ones. I don't regret a thing. Every word I've said, you know I love to speak. It is the world to me that you are in my life, and I won't. ऑलराइट, मैं आपको ये बता रहा था बाथ स्पा क्यों रखा गया है। बेसिकली यहाँ पे जब रोमन्स आए थे 68 AD, ऑलमोस्ट 2000 साल पहले जब रोमन्स ब्रिटेन आए थे, उस टाइम का जगह है ये। और ये पूरा कंस्ट्रक्शन उन्होंने ही किया था। ये देखो गाइस, तापसी पन्नू डंकी में देखे हो ना, वो वाला है। ऑलराइट, लेट्स स्टॉप इन। ऑलराइट, हमें अंदर जाते हुए ये सब कुछ देखने को मिलेगा। एंडलेस हॉट मिनरल वाटर, मीट द रोमन्स एंड मीट द गॉड ऑफ रोमन्स। ऑलराइट, दिस विल बी इंटरेस्टिंग। लुक एट द आर्किटेक्चर। ओके, उसके साथ साथ वी गोना सी सम पीपल लाइक हाउ दे यूज्ड टू ड्रेस अप एंड उनका प्रीस्ट कैसे होता था। सो यहाँ पे हम लोग टिकट्स ले रहे थे। And trust me, that's very expensive. So per head it is 28 pounds. Alright, यहाँ पे ये लोग ऑडियो गाइड के लिए फ़ोन्स दे रहे हैं। और जहाँ पे भी पॉइंट होता है, हम जस्ट जाके फ़ोन को नंबर प्रेस करना पड़ता है और वो दिखाएंगे कि इस जगह का स्पेशलिटी क्या है। Alright, let's step in Bath. And yes, this is a map of the Bath. Now we are stepping in, and yes, I was saying कि बाथ स्पा ये नाम क्यों रखा गया। बेसिकली
आपको ये दिख रहा होगा ना सामने का स्विमिंग पूल, जो 2000 साल पहले इन्वेंट किया था। और ये पूरा गर्म पानी है, विच इज़ अ नेचुरल हॉट वाटर। एंड यस, यहाँ पे पहले स्पा होता था 2000 साल पहले। यहाँ के जो रानियाँ महारानियाँ या फिर जो भी एम्पायर्स थे, उन सब लोगों का स्पा होता था। और स्पा होने के बाद दे यूज्ड टू गेट डिप इन द वाटर टू हैव अ बाथ। एंड यस, दिस इज़ व्हाई द बाथ स्पा was famous for. Just beside this, let me show you a beautiful architecture. I think this is a church which was built by Rome again. Look at the architecture, guys. It's been almost 2000 years, but still this looks awesome. And look at the people, they're enjoying the music of the old man who is sitting around and playing a music there. These statues which are surrounded by this pool are emperors and governors of Roman in 60th or 70th AD. As you can see, the water is green. It's filled up with algae now. But in earlier days, there was a roof which was almost about 20 meters above the water level. And this is how they used to be, there wouldn't be an algae on those days. So this is what that board is trying to explain you. This instruction board is trying to show us how exactly the water comes from the earth and why it is hot water. So we are stepping in now. Let's see from where the water used to generate and is it hot even now. Moving further, we can see the temple. So this is how the temple used to look like, and this is a pediment image which was on the top of the temple. So this clip shows the real stone made architects which was on the temple again. This is it. Alright, आगे चलते हुए अगेन यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग सा इन्होंने प्रिजर्व करके रखा था. That was a man from Syria who was on 60th or 70th AD. मीन्स 2000 साल पहले का बंदा था. तो इसकी बॉडी कहीं कफन में मिली थी, which was not buried. तो इन्होंने उसको लेके उसका 3D मॉडल बनाया हुआ है उसका फेस का, और ये उसका स्केलेटन है जिसको इन्होंने सिर्फ ये भी प्रिजर्व करके रखा है. अमेजिंग, ये बहुत सही था. ये वाला स्कल्पचर है, कोई रोमन की लेडी थी who was really beautiful और उसका हेयर स्टाइल बहुत अलग किस्म का था it seems. So because of that they made this particular statue, and
आपको आगे वीडियो में देखने को भी मिल रहा होगा कि पहले के रोमन लोग कैसे रहते थे और उनका बर्ताव कैसा था, उनका हेयर स्टाइल कैसा था। एंड दीज आर उनके पहले के वेसल्स जो भी उन्होंने यूज़ किया था। एंड नीचे आपको लाइक स्पून्स और दावत हड्डियाँ, वो सब कुछ जो उन्होंने उस टाइम पे यूज़ किया था, शायद वो वाले इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। सो बेसिकली यस, दिस इज़ जस्ट शोइंग ऑल दोज 70th or 60th AD. And these are the coins which they have found in the river. This is a head of Sulis. Basically इनको गॉड माना जाता था। and this is a temple which is almost broken, but still they have tried to save it as much as possible। और इसको पूरे तरीके से कवर किया है इन लोगों ने। और इसके नीचे से जो भी वो पानी आता है, इसके नीचे से, टेंपल के नीचे से आते हुए इस स्विमिंग पूल के अंदर जाता है। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू जूम अराउंड एंड शो यू कि नीचे से बबल्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हॉट वाटर। दिस इज़ द प्लेस वेयर द वाटर कम्स आउट फ्रॉम द अर्थ। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत गर्म था। हमने यहाँ पे हाथ रख के स्टीम को टच करने की कोशिश किया तो इट वाज रियली हॉट। तो ये गर्म पानी ऐसे यहाँ से आते हुए पूल के अंदर जाएगा। लेट मी जस्ट वॉक थ्रू। जो हमारे नीचे यहाँ पे स्टोन्स डाला गया है, यहाँ से वाटर जाता है। और सिंस द वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा है तो ये लोग इसको रिवर में छोड़ते हैं। एंड थोड़ा अमाउंट ऑफ पानी जो सिर्फ पूल के लिए चाहिए, उतना पानी से ही पूल भरता है तो वहाँ पे स्टॉप कर देता है, सो दैट द पूल शुडंट बी ओवरफ्लोड। एंड एज यू कैन सी द वाटर इज dirty, is not cleaned, because this will be cleaned once in 6 months it seems. Yes, but this is really beautiful again. So moving further, we'll see what exactly this spa meant to be for Romans. So yes, this is how they used to take spa. So let's step in and see what exactly the spa room was. So चलो आगे चलते हुए। So this is an hot room basically। ये नीचे के टाइल्स है जो पिलर से जैसे दिख रहा है, ये टाइल्स होते थे और इसके ऊपर एक प्लेन टाइल डाला जाता था एंड नीचे से इसको हीट किया जाता था सो दैट रूम यूज्ड टू बी हॉट लाइक दिस। यहाँ पे एक एआई वीडियो भी प्ले किया है जिससे देखने के बाद समझ में आता है कि कैसे था। और वो देखो कॉर्नर में आपको एक टाइल्स भी दिख रहा है जो उस जमाने के टाइल्स है। इट्स ऑलमोस्ट ब्रोकन बट स्टिल they try to save as much as possible। and यहाँ पे इन्होंने AI के वीडियोस प्ले किए हुए जस्ट जानने के लिए कि यहाँ पे क्या होता था। ये देखो स्विमिंग बाथ, दिस इज अ स्विमिंग बाथ इट सीम्स। and I think this is the gym where they used to work out। and again they have created some AI pictures over here।
यहाँ पे इन लोगों ने एक टैब लगा हुआ है। बेसिकली ये सेम वही वाटर है जो वहाँ पे फ्लो हो रहा था। दिस इज़ प्योर मिनरल वाटर विच वी कैन टेस्ट, सो आई गॉट टू टेस्ट हियर। या दैट वाज अ नॉर्मल वाटर। We got to come out from Roman Bath. Now we are passing towards Pulteney Bridge. So let's see how it is now. There you go. So this is a Pulteney Bridge, and the water which is passing through the Pulteney Bridge, this is basically a river Avon. This is one of the beautiful scenery I have ever seen. Now we are walking towards circus. तो वहाँ पे जाके जानते हैं क्या खासियत है। For almost walking for 10 minutes, हम लोग the circus पहुँच गए हैं, and it is one of the renowned historic ring in the city of Bath. और जैसे कि आप देख रहे हो, it resembles the shape of sun. और इस तरीके के आर्किटेक्चर को जॉर्जियन आर्किटेक्चर कहा जाता है। जैसे कि नाजी बोल रही थी, इट रिसेम्बल्स द शेप ऑफ सन। इसको ऊपर से देखने पे दिस लुक्स कम्प्लीटली राउंड, तो इसके कारण इसको सर्कस कहा जाता है। और इसके 3 डिफरेंट एंट्रेंस है। नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स रॉयल क्रेसेंट, विच इज़ वन ऑफ the most iconic landmark, which is built in 1767 and 1775, and it is designed by John Ott. Basically, this is one of a beautiful architect of Bath, and which has an overlooking Royal Victoria Park, which is exactly in front of this. Alright, this is where we completed our one-day trip to Bath, and thank you so much for watching this video, and keep supporting guys. Thank you so much. See you soon with a new video.